Good morning, students. In previous lecture, we learnt about dimensions of physical quantities and dimensional formula of those quantities. Now, in this lecture, we will study about applications of dimensional formula. That where we can apply these dimensional formulas, how to use these dimensional formulas. So, our next topic is applications of dimensional formula. There are three applications to check the dimensional consistency of equation, to derive relation among physical quantities, conversion of unit from one system to another. So let us start. Our first application is to check the dimensional consistency of relation. Dimensional consistency of relation. It means to check that our formula, physics formula, is correct or not. In this application, we will study about the formula is correct or not. Then dimensions. With the help of dimensions, we will check the formula of physics is correct or not. For example, first example is V is equal to U plus S. For example, first easy example. Let us take an easy example. S is equal to V into T. Where S is the distance, V is the velocity, and T is the time. In previous lecture, we find out dimensional formula of some physical quantities, as the dimensional formula can be written in the form of mass, length and time. Also in the form of current, temperature, where we will add that quantities. Now the dimensional formula of distance can be written in the form of length, V velocity. Formula of velocity is displacement upon time upon time. T means time. So the time cancel and displacement in the form of length. Here student, left hand side and right hand side of both the terms are equal. It means this formula is correct. If left hand side is not equal to right hand side, then our physics formula or formula is not correct. Thus, this application can be used how to check the physics formula, that our dimensional formula or physics formula is correct or not. Let us take another example. V is equal to U plus AT, where V is the velocity, final velocity, U is the initial velocity, A acceleration, and T time. You must know about the formulas of these quantities. Then you can find the dimensional formula. Then you can check the dimensional consistency of this relation. Firstly, what is the formula of velocity? Final velocity or initial velocity both have equal formula because both are velocities. V is the final velocity. The formula of velocity is displacement upon time. And the formula of initial velocity is also displacement upon time. Plus A is acceleration. Acceleration is velocity upon time multiply time. Now we have to check the displacement upon time. Dimensional formula of velocity is displacement in length, time in t, displacement in length, time in t, plus velocity, time will cancel, and then velocity is displacement upon time. It means
It can also be expressed in the form of L upon T. So here students, left hand side is equal to right hand side because all the terms have equal dimensions. Dimensions cannot be added in the right hand side. So we have to check dimensions of each term on both sides should be same. See, L upon T is equal to L upon T plus L upon T, means dimensions of each term are equal, so this dimensional formula is correct. Yes students, don't confuse in both numerical. See, here is a single term S is equal to VT. So we हमने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टर्म का यूज़ किया है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म है ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. बट अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कुछ भी साइन होगा तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना है, उस पे पास हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हम ऐड नहीं कर सकते, कभी भी डायमेंशंस को हम ऐड नहीं कर सकते. तो इसलिए हम सेम पार्स ऐड कर सकते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन में होगी, पर ऐड नहीं कर सकते अगर हमारे पास साइन या सब्ट्रैक्शन का साइन होगा. तो हमने हर एक सिंगल टर्म को देखना है. सिंगल टर्म की डायमेंशंस हमारे पास क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए. जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी आई है, हर एक सिंगल टर्म की डायमेंशन जो है राइट हैंड साइड पे भी इक्वल आनी चाहिए. लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल. Example number 3, that is v square minus u square is equal to 2as. We have to check the dimensional formula is correct or not. अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ऐसे आएगा, आपके पास कोई भी फिजिकल रिलेशन दिया होगा, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ रिलेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. और भी और फॉर्म में आ सकता है, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ रिलेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. So let us solve this example. V square minus u square is equal to 2as, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a है acceleration and s is distance. A acceleration and s is distance. Let us solve this question. See, in first example s is equal to ut. हमने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होनी चाहिए क्योंकि ना तो इसमें एडिशन में कोई नंबर था ना ही कोई सब्ट्रैक्शन में था. बट सी, इन दिस एग्जांपल हमारे पास एक क्वांटिटी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो रही है. तो अब हमें देखो, अब हम डायमेंशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशंस आएंगी वो इंडिविजुअल हमने सॉल्व करनी है. फिर हमने राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को देखना है. तीनों जब इक्वल आ जाएंगी देन आवर डायमेंशनल फॉर्मूला इज करेक्ट. सी, वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के लिए पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का क्या है, स्क्वायर. एंड देन यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर के लिए भी यू वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू 2 इज अ नंबर, कॉन्स्टेंट नंबर. हमने पहले भी लिखा है कॉन्स्टेंट नंबर की कोई डायमेंशंस नहीं होती. 1 2 3 4 सो ऑन, जितने भी नंबर आ जाएं दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज. ए बी सी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू आए और या फिर अल्फ़ाबेटिकल नंबर आए, उसके पास कोई भी डायमेंशंस नहीं होती अगर वो टर्म डिफाइन नहीं कर रही. जैसे ए से मुझे पता है एक्सेलरेशन है, एस से डिस्टेंस है, वी से वेलोसिटी है, यू से वेलोसिटी है, ठीक है. और अगर कोई नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हमारे पास वो क्या क्वांटिटी बन जाएगी, डायमेंशनलेस. ए इज एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड एस इज डिस्टेंस. सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एल अपॉन टी स्क्वायर, एल अपॉन टी स्क्वायर velocity displacement upon time multiply
distance. In denominator, time will multiply. L square upon T square minus L square upon T square is equal to displacement into distance. In the form of length, it can also be written in the form of length. It means L square upon T square. See, individually the dimensions of each term same. So this dimensional formula is correct. This dimensional formula is correct. You can also solve this question as individually you can write the dimensions v square, u square, 2as. Then you can solve these terms individually. You will get the same dimensions in the form of L square upon T square. You can solve with this also. Now we will do second application to derive relation among physical quantities, in which we will derive a formula with the help of dimensions. Students, these applications include numericals. मीन्स जो तीनों एप्लीकेशन है इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं हमारे पास. सो दीज एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और हमें इनको छोड़ना नहीं है एग्जामिनेशन के लिए. नाउ आवर सेकंड एप्लीकेशन इज टू डिराइव रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़. और मुझे रिलेशन फाइंड करना है. इट मीन्स मुझे एक फॉर्मूला डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस. और देखिए मैं हम कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं डायमेंशंस की हेल्प से. और कैसे कर सकते हैं? वी विल टेक एन एग्जाम्पल. कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ bob attached to a spring that oscillates under action of force of gravity. Suppose that time period of simple pendulum depends on length, mass, acceleration due to gravity. Derive the expression for its time period using method of dimensions. अब मुझे देखो एक फॉर्मूला डिराइव करना है टाइम पीरियड के लिए और मुझे सिर्फ गिवन है कि टाइम पीरियड जो है कि एक सिंपल पेंडुलम है जो एक बॉब के साथ हैंग किया हुआ है, अटैच किया हुआ है और वो ऑसिलेट कर रहा है, मतलब वो मूव कर रहा है. और अगर हमें इतना गिवन है कि सपोज टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, मास पे और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे. अगर हमें इन तीनों चीज़ों का पता है तो हमें इन तीनों चीज़ों की डायमेंशंस ज़रूर पता होनी चाहिए. तो फर्स्टली यू विल लर्न दी डायमेंशंस और आपको डायमेंशनल फार्मूला पता होने चाहिए, तभी आप एक फार्मूला को सेकंड एप्लीकेशन में सॉल्व कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एज गिवन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कि टाइम पीरियड जो है किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है. सबसे पहले हमें वो चीज़ें लिखनी है जिसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है. तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास एल रेज टू पावर ए, एम रेज टू पावर बी एंड ग्रेविटी जी रेज टू पावर सी. इट मीन्स इन तीनों इक्वेशंस पे टाइम पीरियड क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं. सो कंबाइनिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, अगर मैं इसे कंबाइन कर दूं तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? एल रेज टू पावर ए, एम रेज टू पावर बी एंड जी रेज टू पावर सी. When we will remove this proportionality sign, we will add a constant k. It may be any number in the form of number or a numerical value where k is the dimensionless constant. Means इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी. हम ऐसा कोई भी टर्म ऐड करेंगे proportionality को हटा के जिसकी कोई भी डायमेंशंस ना हो, क्योंकि इसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा. टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन दी लेंथ, मास एंड ग्रेविटी. तो मुझे सिर्फ इनकी डायमेंशंस चाहिए. और देखो यहाँ पे पावर आ रही हैं ए, बी, सी, और जब मैं इन पावर्स को फाइंड कर लूँगी तो मेरे पास एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा टाइम पीरियड के लिए. तो मतलब मुझे फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? मुझे सिर्फ पता होना चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है. मुझे उनको पावर्स देनी है जिस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है. और जब मैं उन पावर्स को फाइंड कर लूँगी, उन पावर्स को यहाँ पे पुट कर दूँगी, तो मेरे पास अपने आप एक रिलेशन बन जाएगा और जो कि एक फॉर्मूला ही होगा. ठीक है. इक्वेशन नंबर
fourth. Now we will write the dimensions of these terms. T, time period, taking dimensions on both sides of equation fourth. Both sides of equation fourth. Dimensions of time period means it doesn't depend on mass, length, and the dimensions of time period is m0, l0, t1. K is a dimensionless constant, means having no dimensions. Length l raised to power a, लेंथ को लेंथ की फॉर्म में लिखते हैं डायमेंशंस की. मास को m की फॉर्म में m रेज टू पावर b. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके इक्वल टू आ जाती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टी स्क्वायर बन जाएगा. और डिस्प्लेसमेंट इन लेंथ टाइम टी स्क्वायर. तो हमारे पास जो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, जो हमने पीछे डायमेंशनल फॉर्मूला में पढ़ा है, वो किसके इक्वल टू आ जाएगा? L1T-2. और पावर क्या है इसकी? C. और अगर अब मैं इन्हें कंबाइन करूँ, L रेज टू पावर A, L रेज टू पावर C भी है, तो बेस सेम, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड A प्लस C बन जाएगा. M सिर्फ B पावर है और T की पावर क्या है? सिर्फ -2C. M0 L0 T1. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सब टाइम पीरियड की डायमेंशन है. नाउ वी विल कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड. हम उनकी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे. बेस सेम है, इन दोनों की पार्ट्स को कंपेयर किया जा सकता है. तो m रेज टू पावर 0 है, m रेज टू पावर b है. पहले मैं इसकी पावर को कंपेयर करूँगी तो b की वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगी? 0. देन a प्लस c इज इक्वल टू 0 और -2c इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास देखो c की वैल्यू किसके इक्वल टू आ गई? -1/2. a प्लस c इज इक्वल टू 0 मीन्स a इज इक्वल टू -c, as c is equal to -1/2 and a is equal to -c. So a is equal to -c means -c is equal to -1/2. So the value of a is equal to 1/2 and c is equal to -1/2 and b is equal to 0. अब हमारे पास पार्ट्स की वैल्यू आ गई a, b और c. अब मैं इन पार्ट्स को उठा के कहाँ पे पुट कर दूँगी? इन इक्वेशन नंबर 4th. और इक्वेशन नंबर 4th में देखो पुट करो तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बन जाएंगी इक्वेशन नंबर 4th में पुट करने पे, t इज इक्वल टू k l रेज टू पावर a मीन्स l रेज टू पावर a मीन्स l रेज टू पावर 1/2, m रेज टू पावर 0 और g रेज टू पावर -1/2. l रेज टू पावर 1/2, m रेज टू पावर 0, g रेज टू पावर -1/2. और ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? t इज इक्वल टू k l रेज टू पावर 1/2, m रेज टू पावर 0 मीन्स 1 और g रेज टू पावर -1/2 को मैं नीचे लेके आ सकती हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा. और t इज इक्वल टू k रूट l अपॉन g. ये हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव हो गया टाइम पीरियड के लिए, जो हमें फाइंड करना था कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन. देखो हमने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, हमने सिर्फ डिपेंड किस पे कर रही है वैल्यूज़ वो लिखा, और बस जिस पे डिपेंड कर रही है उनको पार ए बी सी मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने उसे एज्यूम कर लिया. फिर मैंने उसको कंबाइन किया, इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस लिख के और डायमेंशंस के बेस को ही कंपेयर किया. अगर m है इधर तो इधर भी m की पावर को कंपेयर किया, l की पावर को l की पावर के साथ, t की पावर को t की पावर के साथ कंपेयर करके तुम्हारे पास पार्ट्स की वैल्यू आ जाएंगी और पार्ट्स को तुम इक्वेशन में पुट करोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा t इज इक्वल टू k रूट l अपॉन g. Now our second question is, a particle of mass m is moving with velocity v in a circle of radius r. Find an expression for centripetal force acting on it. So students, in this question, force particle of mass m moving with velocity v, अगर हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स.
और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड किस पे कर रही है, ऑन मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r। तो पहले मैं कैसे लिखूंगी, फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। पावर्स मुझे पता नहीं है, वो मुझे फाइंड करनी है फॉर्मूले में, तो मैंने उसको एज्यूम कर लिया A B C। नाउ कंबाइन, अब देखो फोर्स तीनों चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, तो मैं इसे एक ही टर्म में लिख सकती हूँ कि फोर्स डिपेंड्स ऑन m रेज़ टू पावर A, V रेज़ टू पावर B एंड R रेज़ टू पावर C। When we will remove proportionality sign, we will add a constant here। और हमने अभी पीछे पढ़ा है कि k जो होगा वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होगी, क्योंकि फोर्स जो है वो सिर्फ इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, वो हमें फॉर्मूले से पता लगेगा। नाउ वी विल राइट द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। As we know, the formula of force is mass into acceleration, and from this formula we can find the dimensions m1, l1, t minus 2। k कांस्टेंट है, m रेज़ टू पावर a ऐसे ही आएगा क्योंकि मास की डायमेंशन मास की फॉर्म में होंगी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, सो डिस्प्लेसमेंट इन लेंथ, डिवाइड में टाइम था तो t रेज़ टू पावर -1, और पार में क्या है b। रेडियस हमेशा हम किस में रहते हैं, डिस्टेंस में, सो लेंथ रेज़ टू पावर c। अब हम इनकी बेस सेम, तो पार्ट्स को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हम जो सेम बेस वाली पार्ट्स को इक्वेट कर लेंगे। तो m रेज़ टू पावर a यहाँ है, m रेज़ टू पावर 1, तो a इज इक्वल टू 1। l रेज़ टू पावर b, l रेज़ टू पावर c, मतलब राइट हैंड साइड पे हमारे पास l की पावर क्या बन जाएगी, b प्लस c किसके इक्वल टू आएगा, 1। और t रेज़ टू पावर -b, -1 है इंटू b, तो -b बन जाएगा, इज इक्वल टू -2। मतलब यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2, एंड नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, 2 + c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1 - 2 -1, मीन्स नाउ द वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -1। Now we will put these value in equation 4th. Then the equation becomes f is equal to k m raised to power 1 v raised to power b की वैल्यू 2 पुट करनी है हमें इक्वेशन में, v raised to power 2 और r raised to power -1। a b c की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, m1 v2 r -1। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, k m v² r -1 है तो डिवाइड में आ जाएगा, f इज इक्वल टू k mv² अपॉन r। और हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ी हुई है, किसके इक्वल टू होती है, mv² अपॉन r। k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सेकंड एप्लीकेशन। और आप लोगों को इसी तरह के न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्योंकि ये सारी एप्लीकेशन में जो है न्यूमेरिकल्स ही हैं, और ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Now our third application is conversion of unit from one system to another। मतलब थर्ड एप्लीकेशन में हमें कन्वर्ट करना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, मतलब SI यूनिट से मुझे CGS में कन्वर्ट करना, या MKS से, जो हमने 4 यूनिट्स पढ़े हैं पीछे, CGS, FPS, MKS, SI। तो अब हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा कि मुझे यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, SI को CGS में करना है, FPS में या फिर MKS में। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज़ N1U1 इज इक्वल टू N2U2। हियर N1 और N2 नंबर्स हैं, नंबर की फॉर्म में फाइंड आउट होंगे, और U1 U2 उनके यूनिट्स होंगे कि कौन से वाले यूनिट्स को मुझे किस में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल इंटू 10⁻7 अर्ग्स। तो देखो पहले मुझे ये पता होना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला में हमने पढ़े हुए हैं कि जूल किसके यूनिट्स होते हैं और अर्ग्स किसके होते हैं। जूल और अर्ग्स दोनों जो हैं वो एनर्जी के ही यूनिट्स हैं, बस जूल जो हैं वो SI फॉर्म में होते हैं, अर्ग्स जो हैं वो CGS फॉर्म में होते हैं। इट मीन्स मुझे SI को CGS फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि 1 जूल 10⁻7 अर्ग्स के इक्वल टू होता है। N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। U1, अब देखो यहाँ पे मेरे को पता लग गया, N1 जो है वो किसके इक्वल टू है, 1 के इक्वल टू। U1 जो यूनिट्स है मेरे पास SI में गिवन है। N2 की वैल्यू मुझे ये प्रूव करनी है 10⁻7, और U2 जो यूनिट्स हैं वो किस में है, CGS में है।
तो U1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है N1 U1 मतलब M1 L1 T1 A B C। पार्स हमें पता नहीं है तो इसलिए मैंने M1 A L1 B T1 C लिया, इज इक्वल टू N2 U2 मतलब यूनिट्स हैं CGS में M2A L2B T2C। अब देखो मुझे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे N2 फाइंड करना है। तो N2 फाइंड करने के लिए ये सारी जो टर्म है वो इसके अपॉन में चली जाएगी। तो N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेस टू पावर A बन जाएगा, L1 अपॉन L2 रेस टू पावर B हो जाएगा, और T1 अपॉन T2 रेस टू पावर C हो जाएगा। क्योंकि ये पूरी टर्म इसके अपॉन में चलेगी और इनकी पावर सबकी सेम है, तो मैंने इसके दोनों की टर्म में ले लिया, M1 अपॉन M2 रेस टू पावर A इकट्ठे ले लिया। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट, मुझे इसकी वैल्यू को प्रूव करना है 10 रेस टू पावर 7, क्वेश्चन में गिवन है मुझे 10 रेस टू पावर 7 प्रूव करना है। तो मतलब मुझे N2 फाइंड करना है। N1 की वैल्यू मुझे गिवन है कन्वर्ट 1 जूल, और देखो M1 अपॉन M2। अब मुझे पता है कि M1 L1 T1 वाले जो यूनिट्स हैं वो SI वाले यूनिट्स हैं, और M2 L2 T2 जो हैं वो CGS वाले यूनिट्स हैं। अब हमारे पास M1 SI में M1 मतलब मास, SI में मास किस में लेते हैं, किलोग्राम में, और CGS में मास किस में लेते हैं, CGS G से ही पता लग रहा है ग्राम में, रेस टू पावर A। L1 लेंथ SI में किस में लेते हैं, मीटर में, और CGS में किस में लेते हैं, C मीन्स सेंटीमीटर। T1 दोनों टर्म्स में हमारे पास टाइम जो है वो किस में आता है, सेकंड में। अब मुझे सॉल्व क्या करनी है, पावर ABC। अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगी, देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कन्वर्ट 1 जूल, जूल और अर्ग्स दोनों ही यूनिट्स किसके हैं, एनर्जी के। तो मुझे यहाँ पे किसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, एनर्जी का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी हमने पीछे पढ़ा है, क्या होता है, लिखो जल्दी से। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी M1 L2 T माइनस 2, M1 L2 T माइनस 2। इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे पार्स की फॉर्म आ गई, पार्स की वैल्यूज़ आ गई सारी। A की वैल्यू 1, क्योंकि देखो ये मास बन गया, M रेस टू पावर A L रेस टू पावर B T रेस टू पावर C। तो ABC की वैल्यू मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला से पता लग जाएगी जिस भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो N2 इज इक्वल टू 1 kg मतलब 1000 ग्राम। अब मैं इनको भी कन्वर्ट कर दूंगी ताकि ये कैंसिल हो जाए और मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए जो मुझे प्रूव करनी है। A पार A किसके इक्वल टू है, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। पार B है, B पार मतलब 2। टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 रेस टू पावर माइनस 2, ये 1 के इक्वल टू ही आ जाएगा। 1000 ग्राम, ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, रह के गया 1000। 100 स्क्वायर मीन्स 100 मल्टीप्लाई 100। तो 10 की पावर किसके इक्वल टू आ गई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स N2 की वैल्यू जो मुझे प्रूव करनी थी 10 रेस टू पावर 7, वो मैंने प्रूव कर दी कि 1 जूल में कितने अर्ग्स होती हैं, 10 रेस टू पावर 7 अर्ग्स। बस इसमें आपको किस वैल्यू को हम सॉल्व कर रहे हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला डायरेक्टली आप लिख सकते हो N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेस टू पावर A L1 अपॉन L2 रेस टू पावर B और T1 अपॉन T2 रेस टू पावर C। नाउ आवर सेकेंड न्यूमेरिकल इज कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू 10 रेस टू पावर 5 डाइन। देखो न्यूटन और डाइन दोनों किसके यूनिट्स हैं, फोर्स के, और अगर ये दोनों फोर्स के यूनिट्स हैं तो मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला किसका पता होना चाहिए, फोर्स का, M1 L1 T माइनस 2। न्यूटन SI यूनिट्स हैं और डाइन CGS यूनिट्स हैं, मतलब मैं फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी N2 N1 M1 अपॉन M2 रेस टू पावर A L1 अपॉन L2 रेस टू पावर B T1 अपॉन T2 रेस टू पावर C। अब ये जो ऊपर वाले यूनिट्स होंगे ये सारे SI में लिख दो, नीचे वाले यूनिट्स को CGS की फॉर्म में लिख दो। 1 को कन्वर्ट करना है तो N1 की वैल्यू 1 आ जाएगी,
ए बी सी की वैल्यू हमारे पास फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूले से आ जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 1 न्यूटन 10⁵ डाइन्स आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। यहाँ पे हमने एप्लीकेशंस कंप्लीट कर दी और ये आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करनी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल and we will do next topic in next video.